Yeah. We'll read the verse that we see on the screen, Matthew chapter 11, verse 6. और अब जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती 11 उसका 6वां वचन। These are the words that Jesus spoke. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. और ये ऐसे वचन है जो यीशु ने खुद कहे और वो कहता है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए या बुरा ना माने। Yeah, I think that is the correct word, buramana, getting offended. Those who don't get offended, there is a blessedness, there is a joy and happiness and a blessing God has reserved for those who do not get offended. और जो लोग बुरा नहीं मानते उनके लिए एक धन्यता है, एक आशीष है जो परमेश्वर ने रखी है। And Jesus spoke these words in context of John the Baptist. और यीशु ने ये वचन जो थे ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के संदर्भ में कहे थे। I mean, we can think, can John the Baptist get offended? Is he in danger of getting offended? The और हम greatest man of God in the Old Testament. सोच सकते हैं क्या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये कभी बुरा मान सकता है? वो व्यक्ति जो पुराने नियम का सबसे महान व्यक्ति था। Yeah, there was danger. That's why Jesus said, otherwise, he would not have said it. हाँ, उसके लिए भी एक खतरा था। अगर नहीं होता तो यीशु मसीह ये कभी नहीं कहता। If he was in danger, the greatest man in the Old Testament, if he was in danger, how much more us? अगर वो खतरे में था जो पुराने नियम का सबसे महान पुरुष था, तो उससे ज़्यादा हम कितने ज़्यादा खतरे में हैं। But the wonderful good news is that we have the Holy Spirit now, which the Old Testament people didn't have, by whom we can overcome this sin of getting offended. पर सबसे अद्भुत समाचार ये है कि अब हमारे पास पवित्र आत्मा है, जो पुराने नियम के लोगों के पास नहीं था, जिसकी वजह से ये जो बुरा मानना, अपमानित महसूस करने का जो पाप है, इस पर हम विजय पा सकते हैं। Was Jesus said in Matthew 24:10 that not few here and there, but many will be offended in the last days. क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24:10 में कहा कि यहाँ-वहाँ थोड़े से लोग नहीं, बल्कि बहुत से लोग ठोकर खाएँगे या जैसे इंग्लिश में लिखा है बुरा मान जाएँगे। And those who are poor in spirit, they will say, Lord, am I that person? Please have mercy on me, that I don't want to get offended. और जो लोग आत्मा में दीन हैं, वो कहेंगे, प्रभु क्या मैं ये व्यक्ति हूँ? मैं बुरा नहीं मानना चाहता प्रभु। So we look at 3 years why we get offended. और इसलिए हम देखेंगे कि क्यों हम बुरा मानते हैं। Yeah, first we look at the life of Judas Iscariot. और सबसे पहले हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखेंगे। So we read in Matthew chapter 26. मत्ती 26 में हम पढ़ते हैं। Verse 6 onwards, there we read about Mary of Bethany. She was lavishing her love upon the Lord. और वहाँ बतनी की जो मरियम थी, वो अपने प्रेम को प्रभु के प्रति दिखा रही थी, प्रकट कर रही थी। And if you read verse 8, there was an argument saying, why are you wasting this on him? और 8वें वचन में हम देखते हैं कि एक वहाँ विवाद हुआ कि क्यों इसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो? If you compare it with John chapter 12, it was actually Judas Iscariot who actually started this rebellion of saying, why this waste? और अगर इस वचन की तुलना हम यूहन्ना 12 से करके देखें, तो हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत इस पूरे विवाद की जो शुरुआत थी वो यहूदा ने की, यहूदा इस्करियोती ने, कि क्यों ये इसे व्यर्थ किया जा रहा है। And verse 13 and verse 10 rather, Jesus is saying, why are you bothering her? She's done a beautiful thing to me. और 13 वचन में यीशु मसीह कहता है, तुम क्यों उसे तकलीफ देते हो? उसने मेरे लिए एक सुंदर काम किया है। And not only that, in verse 13, Jesus is appreciating her. उतना ही नहीं, 13वें वचन में यीशु मसीह उसकी सराहना भी कर रहा है। And verse 14 till 16, we see how Judas Iscariot responded. Actually, Jesus rebuked all the disciples, but Judas took it personally and he got offended and he left.
left them and went to betray Jesus. और 14 से 16 वचन में हम देखते हैं कैसे यहूदा इस्करियोती ने बुरा मान लिया। यद्यपि यीशु मसीह ने उसके सारे शिष्यों को डांटा था, पर इसने बुरा माना और वो वहां से निकल जाता है। I mean, what was that? It is not even a rebuke, it's a small correction. Why are you troubling her? A small word. For that, he got so offended and he left. और देखा जाए तो यीशु मसीह ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा भी नहीं था, एक छोटा सुधार बस किया था कि क्यों तुम उसे सताते हो या क्यों उसे तकलीफ देते हो। इस छोटी सी बात के लिए वो इतना बुरा मान गया और वो वहां से निकल गया। That's how rotten our flesh is, brothers and sisters. If we don't crucify our flesh, a small correction is enough for us to get offended. और भाई और बहनों, हमारा जो शरीर है उसमें इतनी सड़ाहट है। अगर हम अपने क्रूस को अगर हम अपने देह And we'll also look at another man called Ahithophel who lived in the Old Testament. और एक और व्यक्ति को हम देखेंगे, अहीतोफेल नाम का, जो पुराने नियम में जी रहा था। So the reason Judas got offended is because he gave an advice to Jesus. Why can't this be sold and given to the poor? और यहूदा इस्करियोती इसलिए बुरा मान गया क्योंकि उसने यीशु मसीह को एक सलाह दी थी कि क्यों ना इस इत्र को बेचकर गरीबों में दे दिया जाए। And Jesus did not accept his advice. और यीशु मसीह ने उसकी सलाह नहीं ली। On the top of it, Jesus appreciated the other woman. उससे भी आगे बढ़कर यीशु मसीह ने उस स्त्री की सराहना भी की, उसकी तारीफ की। And he got so offended because his advice was not accepted. और वो इतना बुरा मान गया क्योंकि उसकी जो सलाह थी वो ली नहीं गई। So we'll read about Ahithophel in 2 Samuel chapter 16. और दूसरा शमूएल उसके 16वें अध्याय में हम अहीतोफेल के बारे में पढ़ेंगे। So we read in 2 Samuel chapter 16 verse 20, Absalom is asking Ahithophel for advice. Can you please give his advice? और हम वहाँ 20 वचन में पढ़ते हैं कि अबशलोम जो है वो अहीतोफेल से सलाह मांगता है कि तू मुझे तेरी सम्मति दे। And he gives the advice. Verse 21, 2 Samuel chapter 16 verse 21 and 22, he gives an advice. और दूसरा शमूएल 16वां अध्याय 21 और 22 में वो उन्हें सलाह भी देता है। The advice that you please go to the same roof and you sleep with your father's concubines, he says. और वो कहता है उसी ऊपर के छत पर जाकर तेरे जो पिता है उसकी जो बाकी अन्य पत्नियां हैं उनके साथ तू सो, ऐसा वो कहता है। That is the same roof from where David lusted after Bathsheba. ये वही छत थी जिससे दाऊद ने बत्शेबा के लिए लालसा की उसको देखकर। Sin is like a boomerang. In Australia they have a boomerang. When you throw it at the same force, it will come back. From the same roof where David lusted after Bathsheba, now his son is committing the same sin. और पाप जो है वो एक बूमरैंग के जैसे होता है। बूमरैंग को जितनी तेजी से हम फेंकते हैं उतनी ही तेजी से, उतनी ही गति से वो वापस हमारे पास लौट कर आता है। जिस छत से दाऊद ने बादशेबा के साथ बादशेबा को देखकर लालसा की थी, उसी छत पर उसका बेटा वही पाप कर रहा है। So here is Ahithophel who's given an advice and Absalom receives it, accepts it. So probably Ahithophel was so happy. और यहाँ अहीतोपेल अबशलोम को एक सलाह देता है और अबशलोम ने उसको स्वीकार किया, इसलिए अहीतोफेल जो था उससे बहुत अच्छा लगा। But you continue to read in verse 23. और आगे अगर हम 23 वचन में पढ़े तो You know how anointed Ahithophel was. और क्या आप जानते हो अहीतोफेल कितना अभिषेक था? Ahithophel, when he gives an advice, it is as if an advice coming from the mouth of God. उन दिनों अगर जो सलाह अहीतोफेल देता था ऐसा लगता था कि मानो वो परमेश्वर का वचन है। So he must have been so happy because his advice was accepted. और इसलिए वो इतना खुश हो गया होगा कि किसी ने उसकी सलाह मानी और वही किया। And chapter 17, the next chapter, the first 4 verses, he's giving one more advice.
और 17 अध्याय में, अगले अध्याय में पहले 4 वचनों में वो एक और सलाह देता है। The advice is he's telling Absalom, Ahithophel is telling Absalom, I'll go and kill David when he's weak and weary. और वो सलाह ये है कि अहीतोपेल अबशालोम से कहता है, जब दाऊद थका हुआ है और बहुत ही थक गया है, तब मैं जाकर उसकी हत्या कर दूंगा। But it says, verse 5 and verse 6, Absalom, he goes for a second opinion from a man called Hushai. और 5वें और 6ठे वचन में लिखा है कि अबशालोम एक दूसरी सलाह लेता है एक हुशै नामक व्यक्ति से। And what happens, verse 14? Can you read verse 14, brother? और 14 वचन में ये होता है, तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशै की सम्मति या सलाह अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल Yeah. करने के बाद Yeah, so here you see two advices being given, one advice from Ahithophel, another other advice from Hushai. But it says, verse 14, the advice of Hushai was better than Ahithophel. और यहाँ हम दो सलाह देखते हैं, एक जो अहीतोपेल देता है और एक जो हुशै देता है। और यहाँ लिखा है कि हुशै का जो सलाह था वो अहीतोपेल की सलाह से बेहतर था। Just like in the home, sometimes the advice what our wives give or our husband gives, sometimes it may be better than the other life partner. और कभी-कभी जैसे घरों में, परिवारों में भी होता है, जो सलाह हमारे जीवन साथी, हमारे पति या पत्नी देते हैं, कभी-कभी हमारी जो सलाह है उससे बेहतर वो हो सकती है। In the church, when there is, when the brothers come together, they have to decide what another brother may be younger to me, what he advises or suggestion that may be much better than what I suggest. और कलीसिया में जब कोई निर्णय लेना होता है और कुछ भाई उस पर चर्चा कर रहे हैं, कभी-कभी दूसरा एक भाई जो मेरे से जवान है, वो जो सलाह देता है शायद वो मेरी सलाह से बेहतर है। And even in the office, maybe somebody who's less experienced than me, he may give a better advice than what I have to give. और वैसे ही हमारे दफ्तर में भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे जवान है, जिसका अनुभव हमसे कम है, शायद वो हमसे भी बेहतर सलाह दे सकता है। Do we get offended because someone else's advice is accepted and my advice is rejected? क्या हम बुरा मान जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं कि किसी और की सलाह ली गई और मेरी सलाह जो है उसे नहीं स्वीकारा गया? And what do you think Ahithophel did? और आपको क्या लगता है इसके बाद अहीतोपेल ने क्या किया? Verse 23, he went and hanged himself just like Judas Iscariot because he was so offended, his advice was rejected. इस वचन में हम देखते हैं कि अहीतोपेल ने जाकर अपने आप को फांसी दे दी, बिल्कुल यहूदा इस्करियोती के जैसे, क्योंकि उसने देखा कि उसकी सलाह मानी नहीं गई थी। Other than his advice being rejected, we can wonder why in the world did Ahithophel give such a revengeful advice to Absalom that he should go and sleep with his father's concubines. Why did Ahithophel have such bad heart towards David? और यहाँ उसकी सलाह नहीं मानी गई, पर हम ये सोच सकते हैं कि अहीतोपेल ने ऐसी बदले की भावना से सलाह क्यों दी होगी अबशालोम की कि जाकर अपने पिता की जो पत्नियां उनके साथ तो व्यभिचार कर, ऐसा क्यों द्वेष या घृणा दाऊद के प्रति उसके हृदय में? Because if you read 2 Samuel chapter 23 verse 34, we see who Ahithophel actually is. अगर हम दूसरा शमूएल 23 अध्याय उसका 34 वचन पढ़े तो हम देखेंगे कि अहीतोपेल वास्तविकता में कौन था। Yeah, can you read, brother? Can you repeat the verse? 2 Samuel chapter 23 verse 34. दूसरा शमूएल 23 अध्याय और उसका 24 वचन। 23:34. 34 वचन, माफ कीजिएगा। और आखिरी भाग में लिखा है कि अहीतोपेल का पुत्र एलीआम था। Eliam, yeah, Ahithophel had a son called Eliam. और अहीतोपेल का जो पुत्र था उसका नाम एलीआम था। And you remember when David was lusting after Bathsheba and David inquired who this woman is in 2 Samuel 11:3. Somebody says she is Eliam's daughter. Bathsheba is Eliam's daughter.
और अगर आपको याद हो तो जब दूसरे शमूएल 11 में दाऊद ने बत्शेबा को देखा और पूछा कि ये स्त्री कौन है, तो दूसरे शमूएल 11:3 में किसी ने उत्तर दिया कि ये एलियाम की बेटी है। बत्शेबा जो है वो एलियाम की बेटी थी। So who is actually Bathsheba? Bathsheba is none other than Ahithophel's own granddaughter. और बत्शेबा कौन थी? वो जो अहीतोफेल था उसकी पोती थी। And he must have had this bitterness and wounded heart. How dare this king pollutes my daughter-in-law? और उसके हृदय में ये चोट थी, ये कड़वाहट थी और ये उसका चोटिल हृदय था कि कैसे हिम्मत हुई राजा की कि मेरी जो पोती है उसको वो इस प्रकार भ्रष्ट करे। No, that is natural. In our flesh, we have that. Somebody pollutes our family members, we have that. That's natural. It comes from our flesh. ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हमारी देह से आता है। अगर कोई हमारे परिवारजन को इस प्रकार भ्रष्ट करे तो हमारे अंदर यही भावना है कि ये हमारी शरीर, हमारे देह से आने वाली भावना है। But remember, God disciplined David so severely, he lost 4 of his sons, and also that he suffered so bad. पर God judged him severely. पर याद रखिए कि परमेश्वर ने ऐसी कठोरता से दाऊद को दंड दिया कि उसने अपने 4 बेटे खोए और बहुत कुछ खोया। बहुत ही तीव्र और कठोर दंड था प्रभु का दाऊद के प्रति। But Ahithophel was not satisfied. पर उस दंड को देखकर, उस न्याय को देखकर अहीतोफेल संतुष्ट नहीं था, तृप्त नहीं था। Apart from God's judgment, I also want to take revenge. He was so offended. परमेश्वर का न्याय छोड़कर मैं भी बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि उसको इतना बुरा लगा था, वो इतना अपमानित महसूस कर रहा था। Instead of leaving the judgment into the hands of God. इसके बजाय कि न्याय को वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। Yeah, maybe take warning from these examples from Judas and Ahithophel, that when our advice is rejected or when somebody hurts me, when I am not honored, that we don't get offended. और आइए हम अहीतोफेल और यहूदा से इस पाठ को सीखें कि जब कभी मेरा ये सलाह है, अगर कोई मेरी सलाह नहीं मानता या मुझे बुरा लगता है या कोई मुझे अपमानित करता है, तो मैं उसकी वजह से बुरा नहीं महसूस करने लगता। You know, Cain, you remember, he got offended, his face fell. He was so sad because his brother was accepted and he was rejected. और अगर हमको कैन जो था, जब कैन को स्वीकार नहीं किया गया तो उसका मुंह उतर गया, क्योंकि उसके भाई का बलिदान स्वीकार किया गया पर उसको स्वीकार नहीं किया गया था। No, an offended brother, it's very difficult to win an offended brother's heart than a strong city. और एक बुरा जो मान जाए ऐसा जो भाई है, उसके दिल को जीतना एक मजबूत शहर को जीतने से भी ज्यादा कठिन है। To the hungry soul, God's word says, to the hungry soul, every bitter thing is sweet. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूखा है उसके लिए प्रत्येक कड़वी बात भी मीठी होती है। How do I know if we are really hungry for God? The test comes when somebody gives a bitter word of rebuke to us. If I accept it, then I am really hungry for God. But if I reject that rebuke and get offended, I am not hungry for God. हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए सचमुच भूखे हैं या नहीं? अगर कोई, वो परीक्षा तब होती है अगर कोई मुझसे बहुत ही कड़वे सुधार के शब्द कहे और मैं उसे तब स्वीकार कर सकूं, तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर के लिए भूखा हूं। अगर मैं उसको स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब मैं परमेश्वर के लिए भूखा नहीं हूं। You remember Peter when the Lord called him, Satan, get behind me, Satan. क्या आपको याद है पतरस के बारे में, जब प्रभु ने पतरस से कहा था, हे शैतान मेरे पीछे हो जा? We all know that Jesus called Satan as Satan in the wilderness. That we can understand. Get behind me, Satan. But he called Peter as Satan. हम सब ये तो समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जब जंगल में था तब उसने शैतान को कहा, हे शैतान मेरे पीछे हो जा। पर यहाँ यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा। But Peter did not get offended. He was tempted like Judas, like Ahithophel, but he did not give in to that temptation. पर पतरस ने बुरा नहीं माना, वो परखा तो गया उसी समय जैसे यहूदा परखा गया था, जैसे अहीतोफेल को लगा वो भी परखा गया, पर उसने उस प्रलोभन से वो राजी नहीं हुआ। When the Lord told David, I'm not going to use you to build my house, the temple, David did not offend it. जब प्रभु ने दाऊद से कहा कि मैं तेरा इस्तेमाल नहीं करूंगा मेरे घर या मेरे मंदिर के निर्माण में, तो दाऊद ने बिल्कुल बुरा नहीं माना।
But on the other hand, what did David do? Instead of sitting and getting offended, he did everything possible so that others can build पर the house दूसरी of ओर God. पर दूसरी ओर दाऊद ने क्या किया? जब उसको पता चला कि वो मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता, तो वो कहीं उदास होकर बुरा मानकर नहीं बैठ गया, बल्कि उसने हर वो कोशिश की ताकि दूसरे जो लोग हैं वो परमेश्वर के मंदिर को बना सके। I want to have the spirit of David, who said in Psalm 23, "Not Lord, not your encouragement and appreciation, but your rod and your staff comforts me." A rod is a picture of discipline. David could say, "Lord, your rod and your staff, that is what comforts me, not your encouragement." और मैं दाऊद की वही आत्मा मेरे अंदर चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को कह सकूँ, जैसे दाऊद ने भजन 23 में कहा कि हे प्रभु, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो ये नहीं कहता कि प्रभु तेरे प्रोत्साहन से मैं शांति पाता हूँ, पर वो कहता है तेरी लाठी, जिसका मतलब है परमेश्वर की कठोरता से मुझे शांति मिलती है, या उसके सुधार से। And after that, you read that my cup overflows, David says. The reason why our life is not overflowing with the life of God and anointing is probably because we are probably getting offended when, when we are corrected, or when we are rejected, our advice is rejected. और उसके बाद दाऊद आगे जाकर कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारा जीवन क्यों परमेश्वर के आनंद से उमड़ता नहीं? इसका एक संभव कारण ये हो सकता है कि हम बुरा मान जाते हैं। जब कभी कोई हमें सुधार के शब्द कहता है तो हम तुरंत बुरा मान जाते हैं। And the second person we want to look at is Esau. और दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में हम देखना चाहते हैं वो है एसाव। Esau is man who was really offended at his brother because he cheated him 20 years ago. और एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सचमुच बुरा मान लिया था, क्योंकि उसके भाई ने 20 वर्ष पहले उसे धोखा दिया था। No, he had a offended, wounded heart, bitterness in his heart. He stole my blessing. But actually, who sold it? He himself sold it and is now angry with his brother. 20 वर्षों से उसका एक चोटिल हृदय था, एक कड़वा हृदय था, एक बुरा माना हुआ हृदय था। उसको ये बुरा लग रहा था कि मेरे भाई ने मेरा आशीष को चुरा ली, पर वास्तविकता में उसके आशीष को, उसके पहलौठे के अधिकार को किसने बेच दिया था? एसाव ने स्वयं उस आशीष को, उस अधिकार को बेच दिया था। You read in Amos chapter 1 verse 7 about Esau like this. और एमोस की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में हम एसाव के बारे में ये पढ़ते हैं। Yeah, verse 11, 11 वचन. सॉरी, आमोस 1 उसका 11वां वचन। यहोवा यो कहता है, एदोम It के says, Should I read it, go brother? ahead, go ahead. यहोवा यो Yeah, go ahead, कहता go ahead. है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। Yeah, it says about Esau, he was so offended with Jacob that it says in the English Bible, his anger tore. और यहाँ लिखा है कि एसाव याकूब अपने भाई के साथ इतना क्रोधित हुआ कि उसका जो गुस्सा है उसने उसे मानो फाड़ दिया। It says it tore continually, और वहां लिखा है क्रोध से वो लगातार फाड़ता रहा। like how a hungry lion or a tiger tears its prey. कैसे एक भूखा शेर जो होता है, बाघ होता है, वो कैसे अपने उस दूसरे जानवर को फाड़ देता है। And it says he maintained his anger. He never repented or felt remorse. It says he maintained his anger towards his brother Jacob. और इस वचन में लिखा है कि अपने भाई याकूब के प्रति उसने उस गुस्से को बनाए रखा, बरकरार रखा, उसने कभी मन नहीं फिराया। And we might think, what did Esau do in Genesis 33? You remember, we think that is reconciliation. और That is not reconciliation. He was just emotional. When you see somebody after 20 years, you get emotional. There's no reconciliation and repentance there. और उत्पत्ति 33 में अगर हम देखते हैं, जब एसाव अपने भाई याकूब से मिलने जाता है तो हमें लगता होगा कि उसने मेल मिलाप कर लिया। नहीं, वो केवल भावनात्मक था, क्योंकि 20 वर्ष पहले वो अपने भाई को 20 वर्ष बाद वो अपने भाई को देख रहा था। वो केवल उसकी भावनाएं थी, वहां कोई मेल मिलाप उसने नहीं किया था। If he had truly humbled himself and reconciled with Jacob, Hebrews in the New Testament, the book of Hebrews, would not have called Esau as a godless man.
अगर एसाव ने वास्तविकता में अपने आप को नम्र करके अपने भाई से मेल मिलाप कर लिया होता, तो नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में कभी एसाव को एक भक्तिहीन व्यक्ति के तौर पर ये नाम उसको नहीं दिया जाता। And in Ezekiel 35, the word used for Esau is that he's having this ancient hatred or an age-old grudge against Jacob. और यहेजकेल 35 में एक जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अनंत काल से चले रहने वाला, बहुत समय से, लंबे समय से चले रहने वाला एक चोट उसके हृदय में है या गलत भावना है। Brothers and sisters, are we offended because somebody cheated us? Something that happened years ago, maybe 20 years ago, 10 years ago, that we are maintaining that in our heart without repentance. भाई और बहनों, क्या हमें बुरा लगता है कि किसी ने हमें धोखा दिया, हमें ठग लिया, शायद कई कई वर्षों पहले, 20 वर्षों पहले हुआ होगा, और अब तक क्या हमने बिना मन फिराए उसी बात का हमें बुरा लगते रहता है। And one of the last places we read about Esau is when he came for the funeral of his father. He came to bury the dead body of his father, but he was not willing to bury the past, the bitterness towards Jacob. और एसाव के बारे में लगभग आखिरी बात जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो तब था जब वो अपने पिता के मृत्यु के बाद उसको दफनाने के लिए आया। वो अपने पिता को दफनाने के लिए आया, पर जो पहले उसके हृदय में कड़वाहट थी, जो अतीत की कड़वाहट थी, उसको वो दफनाने के लिए राजी नहीं था। Have we buried the past, or are we still clinging on to some hurt somebody's done and I'm offended about it, I'm bitter about it? क्या हमने अतीत को दफना दिया है, या आज भी हमने उसको वैसे ही पकड़े रखा है, मुझे उसके वजह से बुरा लगता है, हम उसके वजह से कड़वाहट महसूस करते हैं। And you know what is the inheritance Esau gave to his descendants? An offended and a bitter spirit. और क्या आप जानते हो कि एसाव ने अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या विरासत दी? वो था एक कड़वाहट भरा और एक बुरा लगने वाली आत्मा उसने अपने बच्चों को विरासत में दी। You remember Herodias, who got so offended, she held a grudge against John the Baptist because he came and pointed out sin in their life, Herod and Herodias' life. क्या आपको हेरोदियस याद है, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा ने जब हेरोद और हेरोदियस के बीच में जो पाप हो रहा है उसको सामने खुली तौर पर बताया, तो उसको इतना बुरा लग रहा था अपने हृदय में। And you know who Herod and Herodias, they are the descendants of Esau. They are called the Edomites. They are the descendants of Esau. Herodias is behaving just like her ancestor Esau. और क्या आप जानते हो हेरोदेस राजा और हेरोदियस जो वो पत्नी उसकी थी, ये कौन थे? ये एदोम के वंशज थे, उनको एदोमवासी कहा जाता है। एदोम जो थे वो एसाव के वंशज थे। And you remember one of the so-called comforters of Job called Eliphaz. और ईयोब का जो एक सांत्वन करने वाला, कहने के लिए जिसको सांत्वन कहने वाला कह सकते हैं, जिसका नाम एलिफाज था। Actually, he was not a comforter. He came and tortured Job. और वास्तविकता में वो कोई सांत्वन करने वाला नहीं था। वो एलिपस जो था, वो आकर केवल ईयोब को उसने बहुत ज़्यादा और पीड़ा दी। In Job 2:11, we read that Eliphaz is called as a Temanite. Teman is one of the sons of Esau. और अय्यूब 2:11 में हम पढ़ते हैं कि एलिपस को कहा गया है कि तेमानी एलिपस, और तेमान जो था वो एसाव का एक पुत्र था। So what is Eliphaz doing? He's seeing another suffering person called Job, and he goes and tries to be a blessing, tries to advise and encourage. He is a nuisance to Job, not a blessing to Job. और एलिपस कौन है? जो एक तेमानी था, वो देखता है कि एक और व्यक्ति अय्यूब जो है वो पीड़ा में है, और वो जाता है उसकी सहायता करने के लिए, उसको आशीष देने के लिए, पर वो कोई उसको आशीष नहीं देता, बल्कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा और पीड़ा और समस्या उत्पन्न करता है। When we are offended and bitter, without setting that right, if I try to go and try to be a blessing or give advice or encourage to others, I'll be a nuisance and a headache to others, not a blessing. जब हमें बुरा लगने लगता है और उस बात से हम सही तरीके से बर्ताव करके उसे ख़त्म नहीं करते, तब जाकर अगर हम सामने वाले की सहायता करना चाहें, उसको आशीष बनना चाहें, तब हम उसके लिए केवल एक सिरदर्द बनेंगे, आशीष कभी नहीं बन सकते। Yeah, let us not get offended, brothers and sisters, like Esau. Let there be no root of bitterness in us by which we will defile many, the word of God says. और भाई और बहनों, हम एसाव की तरह बुरा ना माने और हमारे हृदय में कड़वाहट की कोई जड़ ना हो, जिसके द्वारा बाइबल हमें बताती है कि हम कईयों को भ्रष्ट कर सकते हैं।
And the third person we want to look at is Jonah, who got offended with Almighty God Himself. और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं वो है योना, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ही परमेश्वर के बारे में ही उसे बुरा लगने लगा था। I mean, this is the worst of the lot. Judas, yes, he is bad. Ahithophel is bad. Esau is bad. But the worst of the lot is not getting offended with others, but getting offended with God Himself. और ये सबसे बुरा, सबसे बदतर है। हाँ, यहूदा बुरा था और जो अहीतोपेल ने किया वो गलत, वो बुरा था, एसाव ने किया वो भी। और सबसे बुरी बात वो होती है जब हमने परमेश्वर ने जो किया है उसी की वजह से बुरा मान जाते हैं। We'll move to Jonah chapter 1. हम योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालेंगे। Verse 2. God gives a very clear word to Jonah, go and tell the Ninevites that judgment is coming. और योना एक उसके दूसरे वचन में परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट वचन एक योना को कहता है कि जाकर निनवे को जाकर कहना कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। But verse 3, he rebels and he runs away from the presence of God. पर तीसरे वचन में वो बलवा करता है, विरोध करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग जाता है। You know, just like many of us, when the Lord gives a clear word to us, instead of obeying it, submitting to the Lord, we run away in rebellion. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम में से कई लोग, जब परमेश्वर हमें बिल्कुल स्पष्ट एक बात करने को कहता है, हम वो करने के बजाय हम बलवा करके, विरोध करके परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। And what do we read verse 3? It says he went down. I think there it talking about going geographically, but spiritually also Jonah was going down. और तीसरे वचन में इंग्लिश में लिखा है कि वो तर्शीश में नीचे गया, और वो वहाँ तो केवल भूगोल के तौर पर लिखा है कि वो नीचे गया, पर आत्मिक तौर पर भी योना वहाँ नीचे जाने लगा था, वो फिसलने लगा था। Whenever we run away from the presence of God, not listening to Him, we go down. God wants us to go up, but we go down. जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं, उसकी आज्ञा न मानते हुए हम नीचे जाने लगते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम ऊपर जाए, पर हम नीचे जाने लगते हैं। And three things are mentioned there in verse 3. It says he found the ship, he paid the money, and he boarded the ship. और तीसरे वचन में तीन बातें लिखी है कि उसको एक जहाज पाया, उसने भाड़ा दिया और उस जहाज में वो चढ़ गया। I mean, who provided all these things? ये सारी बातें किसने उपलब्ध करवाई थी? I was thinking if we were in God's place, we would make sure that there would be no ship, there would be no money in Jonah's wallet, and there will be no seats. Seats are full, he cannot travel. और मैं सोच रहा था कि अगर परमेश्वर की जगह हम होते तो हम ये सुनिश्चित करते कि योना का कोई जहाज नहीं होता, योना के पास कोई पैसे नहीं होते, और वहां के सारे मानव सीट भर गए थे, उसके लिए जगह ही नहीं होती चढ़ने के लिए। God only provided everything, all that. परमेश्वर ने ही इन सारी बातों को उपलब्ध करवाया। Why? To test him. क्यों? क्योंकि वो योना को परखना चाहता था। And verse 5, 2 times you read the word again, he went down and down. और पांचवें वचन में हम दो बार पढ़ते हैं कि योना निचले भाग में गया और वो नीचे उतरा। मतलब दो बार हम ये पढ़ते हैं। And with sin in his life, he is fast asleep. और अपने जीवन में पाप रहकर भी, उसके जीवन में पाप होकर भी वो बहुत गहरे नींद में सो गया। Yeah, maybe take a warning, brothers and sisters. If we have sin in our life, maybe some quarrel in the home or some wrong attitude, with that sin in our heart, do we sleep peacefully? May it be bring a fear and trembling in our life. आइए हम इस चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लें। क्या जब हमारे हृदय में पाप होता है, शायद कोई घर में झगड़ा है, कोई बात है जिसको हमने सुलझाया नहीं है, क्या हमारे हृदय में पाप लेकर हम बहुत शांति से, गहराई से सो जाते हैं? Who gave Jonah the sleep? God himself gave. He's testing. वो नींद भी योना को किसने दी? परमेश्वर ने खुद उस नींद को दी, वो उसको परख रहा था। And we all know what happened. There was a storm and Jonah came back to Nineveh. और हम जानते हैं उसके आगे क्या हुआ। एक बहुत बड़ी आंधी आई और आखिर योना निनवे लौट आता है। And he speaks only one sentence, few seconds, not even a half a minute, but great revival broke out in Nineveh. और योना ने केवल एक वाक्य, कुछ सेकंड, कुछ क्षण भर ही उसने शब्द कहे और निनवे के नगर में एक बहुत बड़ी संजीवनी आ गई। What he spoke and what he did was it blessed thousands and thousands of people, but Jonah's heart was far away from God.
जो उसने कहा और जो उसने किया उसके द्वारा हजारों हजारों लोगों ने आशीष पाई, पर योना का हृदय परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर था। When one sinner repents, Jesus said there will be great joy in heaven. यीशु ने कहा जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। Here we don't have one sinner, but the entire city of Nineveh, core unbelievers, they repented. Jonah should have been jumping for joy, but instead of that, he's standing outside the city with anger. He was not even willing to come inside the city. और यहाँ एक पापी नहीं बल्कि एक पूरा शहर जो पूरी तरीके से परमेश्वर के अविश्वासी थे, उन्होंने मन फिराया था। इस समय योना की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? वो तो आनंद की वजह से कूदना चाहिए था, पर वो शहर के बाहर खड़ा होकर गुस्से से, वो शहर के अंदर भी नहीं आता, वो गुस्से से भरा शहर के बाहर खड़ा होता है। He is now angry with God. He is offended with God. How can he accept them? परमेश्वर से गुस्सा है, परमेश्वर से क्रोधित है, परमेश्वर से वो बुरा मान गया है कि कैसे प्रभु तुम उन्हें स्वीकार कर सकता है। His message blessed people, but his life and his heart was far away from God. उसके संदेश के द्वारा लोगों ने आशीष पाया, पर उसका जीवन और उसका हृदय परमेश्वर से बेहद ज्यादा दूर था। Yeah, it's a warning for us, brothers and sisters, that we can do something in the church, we can share something in the church that blesses people, but my heart can be far away from God. ये हमारे लिए चेतावनी है मेरे भाई और बहनों कि हम कलीसिया में कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बांट सकते हैं कलीसिया में जिसके द्वारा लोग आशीष पाते हैं, पर मेरा हृदय शायद परमेश्वर से बहुत दूर है। And Jonah is behaving just like that elder brother in the prodigal son story. He was angry, he was not willing to come in to the house to accept the younger brother, just like Jonah standing outside the city, not willing to come in to accept these people whom God has accepted. अब योना बिल्कुल उस उड़ाऊ पुत्र के कहानी के बड़े बेटे जैसे व्यवहार कर रहा था, जो घर के बाहर खड़ा हुआ, इनको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था उड़ाऊ पुत्र को। बिल्कुल वैसे ही योना बाहर गुस्से से खड़ा था, वो इन लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था जिनको स्वयं परमेश्वर ने स्वीकार किया था। Offended with God because, Lord, you did not behave in the way I expected you to behave. See the arrogance in our heart. और परमेश्वर से उसको बुरा लग रहा है, परमेश्वर के बारे में उसे बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तूने वैसा नहीं किया जैसे मैं चाहता था तू करे। क्या आप देख पाते हो हमारे हृदय में क्या ही घमंड है? Are we offended with God? Lord, why didn't you answer the prayer the way I expected? Why didn't you do things the way I expected? What arrogance and pride. क्या हम परमेश्वर के कामों की वजह से बुरा मान जाते हैं कि प्रभु क्यों तूने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जैसे मैं चाहता था? क्यों तूने उस परिस्थिति में ऐसे कार्य नहीं किया जैसे मैं चाहता था? क्या ही हमारे हृदय का घमंड और अहंकार है? May we consider God as the most important person in our life. आइए हम परमेश्वर को हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जाने, And let us consider others more important than myself. और हम दूसरों को मुझसे भी, अपने आप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जाने। You remember Apostle John in his last epistle, 3rd John, he talks about a man called Diotrephes. क्या आपको याद है यूहन्ना जो प्रेरित था, वो अपने आखिरी चिट्ठी में एक व्यक्ति के बारे में लिखता है जिसका नाम था दियोत्रिफिस। And it is mentioned about Diotrephes that it says that he loves to be first. और दियोत्रिफस के बारे में लिखा है कि वो बड़ा बनना चाहता है, या इंग्लिश में लिखा है कि वो पहला होना चाहता है। Those of us who have that attitude will get offended so easily because I want to be first. Not God, not others, but I must be first in everything. हम में से जितनों का ये रवैया है कि हम चाहते हैं कि मैं पहला बनूं, मैं प्रथम स्थान पर रहूं, परमेश्वर नहीं, दूसरे नहीं, बल्कि हर बात में मुझे पहले स्थान पर होना है। Now in Matthew 15 verse 12, there are two verses I'll read and end. Matthew 15:12. और मत्ती 15 और 12 हम दो वचन पढ़ेंगे। Matthew 15:12, the disciples come and ask the Lord, Lord, do you know that the Pharisees were offended because of what you spoke? और मत्ती 15-12 में चेले आकर यीशु से कहते हैं कि प्रभु क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई या उन्हें बुरा लग गया? And what did Jesus say? Verse 13. और यीशु ने क्या कहा? 13वां वचन। Jesus did not go to the Pharisees begging, oh, I'm really sorry, please forgive me. He didn't say that. यीशु फरीसियों के पास जाकर उनसे वो ये विनती नहीं करता कि मुझे माफ कर दो, ऐसा वो उसने नहीं कहा। Jesus said to the disciples, verse 13, every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted.
यीशु ने अपने चेलों से कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। What happens when I get offended? I'll be like a plant that is uprooted. I'll become dry without fruit in my life. मैं जब बुरा मान जाऊँगा तो क्या होगा? मैं उस पौधे के समान रहूँगा जो उखाड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल सूखा हो जाऊँगा और मेरे जीवन में कोई फल नहीं होगा। And these three words, I want to tremble. I want to take it to my own heart. Verse 14, Jesus says, leave them alone. और ये 3 जो शब्द है, हिंदी में जो 4 शब्द है, इसको सुनकर मैं थरथराना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय में इनको लेना चाहता हूँ। वहाँ यीशु कहता है, उनको जाने दो। I don't want the Lord to ever say to me, leave him alone. He is always getting offended. We are not talking about those of us who fall into the sin of getting offended, but we get up and ask Lord for forgiveness. We are not talking about such people, but those of us who continue in that path of getting offended. और मैं नहीं चाहता कि प्रभु मेरे विषय में कहे कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो निरंतर बुरा मानता है। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हम गिरते हैं, पर हम फिर से उठकर प्रभु से माफ़ी मांगकर आगे चलते हैं, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये बुरा मानते रहने के ही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। And in Matthew 13:57, और मत्ती 13 उसके 57 वचन में, this is his own hometown, Nazareth. और ये नासरत उसका खुद का शहर था जहां वो बड़ा हुआ। Matthew 13:57, it says the people were offended. मत्ती 13:57 में लिखा है, जो लोग थे उन्होंने ठोकर खाई या उनको बुरा लगा। And what do we read in verse 50? It says he could not do many mighty works there. और 58 वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो वहां बहुत सामर्थ के काम को नहीं कर पाया। What do we learn if we combine verse 57 and verse 58? He cannot do many mighty works in a person who gets offended. अगर हम 57 और 58 वचन को एक साथ मिलकर पढ़े तो उससे हम क्या सीखते हैं कि जो व्यक्ति बुरा मानता है, जो व्यक्ति निरंतर अपमानित महसूस करता है, उसके जीवन में परमेश्वर यीशु महान काम नहीं कर सकता। Yeah, God wants to do many mighty works in our life, like helping us to overcome sin, और helping us to परमेश्वर become like Jesus, helping us to have a godly family life. हमारे जीवन में कई सामर्थ्य के काम करना चाहता है। वो हमारी सहायता करना चाहता है कि हम पाप पर विजय पाए, कि हम यीशु जैसे बने, कि हमारा पारिवारिक जीवन ईश्वरीय हो। But like it says in verse 58, he could not do many mighty works. One reason is unbelief, yes, but the other reason is verse 57, they were offended. If we get offended, we are blocking, we are tying the hand of God. और 58 वचन में लिखा है कि वो वहाँ बहुत सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। एक कारण ये है कि अविश्वास, पर दूसरा कारण 57 वचन में लिखा है कि उन्होंने बुरा मान लिया। और जब हम बुरा मान जाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए एक बाधा खड़ी करते हैं। हम मानो परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं। Yeah. God has given us the Spirit of God in the new covenant, whereby whom we can overcome. परमेश्वर ने नई वाचा में हमें परमेश्वर की आत्मा को दिया है, जिसके द्वारा हम जय पा सकते हैं। Yeah, young people, God has a wonderful plan for you, but before that plan comes true, He will test you by allowing you to be rebuked and corrected and disciplined. और आप जो जवान हो, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, और उस योजना को पहले पूरी करने के पहले परमेश्वर आपको परीक्षा लेगा, इसके द्वारा कि वो आपको बहुत कठोरता से किसी को सुधारने देगा। Let us not get offended and destroy the plan of God. Nobody can destroy the plan of God in our life. We ourselves can destroy the plan of God in our life. और आइए हम उस सुधार को प्राप्त करते हुए बुरा ना माने और उसके द्वारा परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में नष्ट ना करें। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का काम है, कोई और उसको नष्ट नहीं कर सकता, हम खुद ही उसे कर सकते हैं। Yeah, God is more willing to help us than we are. Amen. और जितनी हमारी इच्छा है, उससे ज़्यादा परमेश्वर चाहत रखता है हमारी सहायता करने की। आमीन।